Now, the main topic of LPP is formation of LPP. In this year, the wording problem of LPP is neglected, skip. Only you have to find out the solution of LPP by graphical method, and your question is of this type: maximize or minimize z is equal to ax plus by. This z is nothing but your objective function. Z is called as objective function, subject to a1x plus b1y less or equal to c1, a2x plus b2y less or equal to c2, a3x plus b3y less or equal to c3. Means there is some linear equations for variable x and y with condition less or equal to or greater than equal to. This type of subject टू के बाद में जो इक्वेशंस रहेंगे उसको हम कहेंगे कंडीशंस और कंस्ट्रेंट्स, वेयर x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. Now what is the meaning of x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0? This is nothing but whatever your graph, that graph lies in only first quadrant, means positive value of x axis and positive value of y axis. So this is your main object, this is your main question. Either you have to find maximum value or minimum value of objective function z. So we go through first example. Your question is solve LPP, maximize z is equal to 11x plus 8y, subject to x less or equal to 4, y less or equal to 6, x plus y less or equal to 6, where x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. Your question is maximum value. You have to find the maximum value of z. There are three conditions, three constraints are given. First one is x less or equal to 4, second is y less or equal to 6, and third one is x plus y less or equal to 6. By using three inequalities, we have to find the x and y coordinate. For that, now you have to find x and y coordinate as we see in your first video. First inequality is x less or equal to 4. What is its equation of line? Equation of line is x is equal to 4. जो भी इनइक्वालिटी है उसको हम करेंगे इक्वल टू साइन में, तो वो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन. सो we get equation of line as x is equal to 4. From that equation of line you get x coordinate. Here is only x coordinate value, so you get x coordinate as 4, 0. Inequality is less or equal to, so your region is towards origin. इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है इनइक्वालिटी अगर लेस देन रहती है और लेस देन और इक्वल टू रहती है तो क्या होता है, रीजन इज टूवर्ड्स ओरिजिन, और ग्रेटर देन रहेगी तो आउटसाइड ऑफ ओरिजिन. तो इसी को हमने एक टेबल फॉर्म में लिख दिया.
पहला इनइक्वालिटी था x लेस और इक्वल टू 4, उसका इक्वेशन ऑफ लाइन बना x इज इक्वल टू 4, उसका x कोऑर्डिनेट हो गया 4,0 और रीजन हो गया टूवर्ड्स ओरिजिन। देन सेकंड इनइक्वालिटी y लेस और इक्वल टू 6, सो इट्स इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 6। अब इसमें x की वैल्यू नहीं है तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इज 0,6। अगेन योर इनइक्वालिटी इज लेस और इक्वल टू, सो योर रीजन इज टूवर्ड्स ओरिजिन। देन गो थ्रू थर्ड इनइक्वालिटी, सीरियल नंबर थर्ड, x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 6। अब ये एग्जाम्पल में तीनों भी इनइक्वालिटीज़ लेस और इक्वल टू है, कभी हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो बीच में, तो जो भी इनइक्वालिटी रहेगी उस हिसाब से उसका रीजन रहेगा। कन्वर्ट दैट इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. Then get the x and y coordinate. As we see in the first video, x plus y is equal to 6. That means x coordinate is 60 and y coordinate is also 0, 6. उसको क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, x बाय 6 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1. नाउ अगेन इनइक्वालिटी इज लेस और इक्वल टू symbol, so region is towards origin. कितनी भी इनइक्वालिटी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपको इस तरह से टेबल फॉर्म करना है। इनइक्वालिटी लिखिए, उसका इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए, फिर उसका x और y कोऑर्डिनेट लिखिए और रीजन लिखिए। ये हो गया आपका टेबल रिलेटेड टू गिवन इनइक्वालिटीज़। अब इसमें आप चेक करिए कहाँ तक जा रहा है, x का कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा कहाँ तक जा रहा है, 6 तक, और y का कोऑर्डिनेट भी कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। सो अब हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं। ग्राफ पेपर में क्या करेंगे हम, पहले x एंड y एक्सिस डिफाइन करेंगे। x एंड y एक्सिस डिफाइन करने के बाद उसका स्केल देंगे। स्केल x एक्सिस इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इस ग्राफ में हमने 1 यूनिट मीन 1 बॉक्स इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर, सो योर कैलकुलेशन is also related to 1 unit is equal to 1 centimeter. You can use as 1 unit is equal to 2 centimeter also. And y axis का यूनिट क्या रहेगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ग्राफ पेपर पे आपको x एक्सिस और y एक्सिस डिफाइन करना है। y एक्सिस ये रहा और आड़ी लाइन बोले तो x एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस डिफाइन करिए, जो पॉइंट जोड़ते हैं उसको कहेंगे हम ओरिजिन पॉइंट। ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। अब आपके टेबल पर फिर से जाइए, वहाँ पे क्या था, पहला इनइक्वालिटी x इज लेस और इक्वल टू 4, तो ये पहली लाइन 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ नंबर दे दिए हैं जो कि 6 तक जाते हैं, और y एक्सिस में भी वही नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, आगे 7 8 9 10 भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा x और y की वैल्यू क्या है वो डिफाइन करिए और उसके नंबर्स दे दीजिए x एक्सिस में और इधर y एक्सिस में। अब हमारा पहला इनइक्वालिटी था x लेस और इक्वल टू 4, उसका इक्वेशन ऑफ लाइन बना x इज इक्वल टू 4। ये हो गई आपकी पहली लाइन, लाइन 1। x एक्सिस पे
4 वैल्यू पॉइंट जहाँ पे है उस पर आप सीधी खड़ी लाइन निकालिए, वो हो गई आपकी x इज इक्वल टू 4। उसको लाइन को एरो दीजिए ऊपर में और नीचे में। अब उसका रीजन, ये जो पहली लाइन डिफाइन करी है ये मैंने रेड पेन से डिफाइन करी है, इसलिए उसका रीजन क्या रहेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी ओरिजिन साइड में उसका रीजन रहेगा। ओरिजिन आपका कहाँ पर है, ये है ओरिजिन। और आपको कंडीशन क्या दिया है, जो भी ग्राफ आपको बनाना है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बनाना है। तो उसका रीजन कैसा रहेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। जितनी भी लाल लाइन खड़ी आड़ी लाइन दिख रही है ये हो गया वो पहले लाइन का रीजन, ठीक है। फिर सेकंड लाइन क्या थी आपकी, y लेस और इक्वल टू 6। उसका इक्वेशन ऑफ लाइन बना y इज इक्वल टू 6। सो गो थ्रू y एक्सिस and at point 6 draw a line on y axis। ये हमने ब्लू पेन से डिफाइन किया है। और y इज इक्वल टू 6, इसको हम फिर से आड़ी लाइन खींचने के बाद में एरो देंगे दोनों तरफ से, इधर एरो है और एक इधर एरो है, और उसको नाम देंगे y इज इक्वल टू 6। ये हो गई आपकी सेकंड लाइन। अब इसका रीजन, अगेन इट इज़ टूवर्ड्स ओरिजिन, सो गो टू ओरिजिन साइड। जितने भी क्रॉस बनाए हैं ये हो गए उसके सेकंड लाइन के रीजन। सेकंड लाइन का रीजन क्या है, यहाँ पे डिफाइन करा हुआ क्रॉस। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इस तरह से ना करते हुए डायरेक्ट एक कॉमन रीजन भी डिफाइन कर सकते हैं बाद में। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अलग अलग रीजन्स और अलग अलग लाइंस डिफाइन करने के लिए मैंने सिम्बॉल्स यूज़ करे हैं। देन थर्ड लाइन, योर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 6 एंड योर कोऑर्डिनेट इज x कोऑर्डिनेट इज 6 0, y कोऑर्डिनेट इज 0 6। सो दो पॉइंट्स जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के 6 पॉइंट वाले, उनको जोड़ते हुए एक हम लाइन डिफाइन करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने ऑरेंज पेन से डिफाइन करा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दो पॉइंट्स को जोड़ा, 6 एक्स एक्सिस का और इधर भी 6 वाई एक्सिस का। इनको जोड़ने के बाद में जो लाइन बनी उसका नाम देंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो गई आपकी लाइन नंबर 3। अब इसका रीजन अगेन टूवर्ड्स ओरिजिन। तो जितने भी डॉट्स यानी छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं ये हो गए आपके थर्ड लाइन का रीजन। ओरिजिन आपका इधर है, इसके आगे नहीं जा सकते और इसके नीचे में भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपका जो भी रीजन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये तीनों रीजन यानी आड़ी लाइन, क्रॉस और डॉट, इसका कॉमन पोर्शन क्या मिला आपको, चेक करिए। एक तो ओरिजिन वाला है, ओरिजिन, फिर पॉइंट ए तक, फिर पॉइंट बी तक, इसके आगे नहीं बढ़ा। ये जो डॉट्स है इसमें आपको आड़ी लाइन यानी लाइन 1 का पोर्शन नहीं है, इसलिए ये पोर्शन कैंसिल हो गया। बी पे आया कॉमन रीजन और फिर बाद में तिरछा होते हुए सी पर गया, फिर अगेन गो टू ओ, मीन्स यू गेट कॉमन रीजन एज ओ ए बी सी। जो कॉमन पोर्शन मिलता है उसको आप नाम दीजिए। ओ का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 हमेशा रहेगा। अब ए पॉइंट कौन से इस पर है, 4 पर है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 0। बी का कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, एक्स एक्सिस की वैल्यू तो 4 है और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही है, ग्राफ पर सीधे पता चल रहा है, ये क्या है 2।
अब सी का कर, सी में क्या हो रहा है 0.6 पे, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है 6। इस तरह से आपको एक कॉमन रीजन मिलेगा फॉर डिफरेंट इनइक्वालिटीज़। जो भी इनइक्वालिटीज़ दी है उस पर से आपको रीजन मिल रहा है, उसके वास्ते हम एक कॉमन रीजन मिला। उसके बाद में हमने उसके पॉइंट्स डिफाइन करे, वो हो गए आपके द फीजिएबल रीजन इज़ OABCO। आपको वो जो कॉमन पोर्शन मिला है उसको हम कहेंगे फीजिएबल रीजन और सॉल्यूशन सेट। सो फॉर दैट पॉइंट मीन्स फॉर दैट वर्टाइसेस यू गेट द वैल्यू ऑफ z। आपको वो जो पॉइंट्स मिले हैं कॉमन पोर्शन के, उस पॉइंट्स पर के लिए z की वैल्यू निकालना है। ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ। इस ग्राफ पे आपको 1 मार्क रहता है और रीजन जो रहता है, रीजन डिफाइन करा उसके ऊपर 1 मार्क रहता है। अब सॉल्यूशन पे जाएंगे। ग्राफ निकालने के बाद में सॉल्यूशन, द फीजिएबल रीजन इज OABCO वेयर इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, O का कोऑर्डिनेट 0 0, A is 4 0, B is 4 2 and C is 0 6. Therefore the objective function z is equal to whatever your z equation, z is here 11x plus 8y has value at point O। origin पे z की वैल्यू निकालिए, z is equal to 0 because x and y coordinate is 0। Then at point A, A coordinate is 4 0, so put x coordinate as 4 and y coordinate as 0 for z। So you get z is equal to 11 into 4 plus 8 into 0 is equal to 44। Similarly find the value at point B and C। जितने भी वर्टाइसेस मिले हैं आपको रीजन पर के, उसके लिए z की वैल्यू निकालिए। अब इस z में क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, इसलिए ये जितने भी पॉइंट्स मिले हैं उस पॉइंट के में से मैक्सिमम वैल्यू चेक करिए। मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 60। Therefore the objective function z is equal to 11x plus 8y has maximum value 60 at point B which is having coordinate 4 2। अभी एक 4 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी है। 1 मार्क आपका ग्राफ पे, 1 मार्क फिजिएबल रीजन पे, 1 मार्क इन सभी वैल्यूज़ पर और आखिरी 1 मार्क ये रिज़ल्ट पर, वर्डिंग पर। इस तरह से आपका LPP का एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कवर किया है।